Good morning, student. I am Rajendra Simuri, your maths teacher from the Gnan Manjari Vidyapith Mova. Again, welcome back in this online session of class 9th in mathematics. Everyone, now just relax and we will start again for the our new session in this term. You know already that we discussed in the previous section we all the bridge courses we conclude. Now, whatever the homework is given for your best performance in the breeze course, that we will discuss again whenever you submitted your assignment as a part of vacation. Then after, whatever the doubts inside the assignment, that we will discuss periodically in each lecture. Now we will start our session for the class 9th originally from today. So this syllabus is divided in two parts. First part of the mathematics and second part that we will discuss into the second term. So in the first term, in this part, we will cover here the four unit number 1, unit number 2 and unit 3 and 4. Similar way we are using the in the part 2 unit 5, 6 and 7. So first one unit 1, and today we will discuss on the unit number 1. Inside the unit number 1 there are two main chapters of the NCERT. So first thing I will be cleared over here that you have to uh, study both of the books, supplementary books of the lead school and NCERT book, which also be provided from the school also. So from the NCERT chapters till you have to not gathering or not particular books from the book from the school till you have to work with me from this video lecture, so you can also directly learn from this video. So whatever the exercise parallel I provided with the supplementary book and NCERT book, that is simultaneously provided in this video lecture, so you must be cleared about that two books parallel we have to cover in the mathematics. So as per the NCERT plan, we will follow this lead school content. So whatever the contents we provide in front of the mathematics, that is collaborate with each other, so nothing to we elapse inside the NCERT book. तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी बुक में जो भी कंटेंट है वो कंटेंट को भी हम साथ में लेकर चलेंगे. सो जो भी चीज़ आपको समझ में आ रही है उसके बेस के ऊपर ही हम चलेंगे. सो दैट इज द बेस ऑफ एनसीईआरटी एंड वॉट एवर द थिंग we are using, that is only for the supplementary book. So this is a one supplementary book, so you can also use for your extracurricular. Okay, so let us start. So without wasting the time of the mathematics, here we covered unit number 1. So you can also see in this particular your supplementary book in the first page. So this is our annual learning planning for the part 1 and part 2. So unit number 1, that is number system and geometry. So that is covered here from the real numbers and coordinate geometry, that is the name of the unit. And we covered from the NCERT book. यदि आपके पास NCERT बुक नहीं है, वो बुक आपको जल्द ही मिल जाएगी. तो NCERT बुक के चैप्टर नंबर 1 एंड 3 को हम यूनिट नंबर 1 कहेंगे. समझ में आ गया? फिर से मैं बोल रहा हूँ, NCERT book के chapter number 1 and 3 both we covered in unit number 1. Similar way in the unit number 2, geometry unit, geometry concept, that is the chapter number 5 and 6, and unit number 3, that is a part of unit number 2 and 4. That is also be covered from the NCERT, and unit number 4, that is also be covered with the geometry and triangle and quadrilaterals portion. That's why we have to cover the NCERT chapter number 7 and 8.
So isn't it, this is the part 1 that we covered in the first term of your ninth class, isn't it? So with the best hope, we should start here the first portion of the unit number 1 that is covered here for the chapter number 1 and 3. So let us start with it. So this is your unit number 1, real numbers and coordinate geometry. That is the whole name of the unit. Now let us start with the unit number 1, real numbers and coordinate geometry. That is the name of the units here. And inside the NCERT chapter, just we covered here uh, number system. This is the chapter number 1 of NCERT. Chapter number 3 of the NCERT, that is the coordinate geometry. Both of the chapter included into the part 1, unit number 1. So let us start with the real number systems. Inside the number systems, we have to use these 5 points. आप यहाँ पे different 5 points आप अपनी supplementary books में भी देख सकते हो. So whenever you have to attend this lecture, that time you have to keep this particular supplementary book. You should also bring this NCERT book with your notebook and pen. Everything resides with you, so you can directly see that which things we highlighted in the front of you. हम यहाँ पे आपको ये बता रहे हैं कि नंबर सिस्टम्स में कितने पॉइंट्स है जो हमें कवर करने हैं. तो हमें पहले ये सीखना है नंबर सिस्टम में कि रेशनल नंबर एंड उसको नंबर लाइन, रेशनल नंबर किसको बोलते हैं और इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. फिर हमें इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है और उसको भी हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. Third thing is from the real number set is combined set of the rational and irrational numbers. So we can also use that कैसे हम रेशनल और इरेशनल नंबर्स को कंबाइन करके एक साथ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द नंबर सिस्टम. देन परफॉर्म ऑपरेशन ऑन द इरेशनल नंबर्स. सो वेरियस ऑपरेशंस वी हैव टू परफॉर्म ऑन द इरेशनल नंबर्स. अप्लाई लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ऑन द रियल नंबर्स. सो वेरियस लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, हम 8th स्टैंडर्ड में भी कितने सारे एक्सपोनेंट के लॉज सीख चुके हैं. तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यहाँ पे भी हम रियल नंबर पे अप्लाई करेंगे. तो ये सब चीज़ है चैप्टर नंबर 1 के रिलेटेड. तो ये चीज़ के ऊपर हम आगे बढ़ते हैं. जस्ट वी हैव टू चेक इट आउट. Okay, so that is both of the mapping of the NCERT and lead both, because both books page numbers is mentioned in your supplementary book also. So you can also note down it into the first page of your fair book. So from these points you should start with your fair book. आप अपनी बुक फेयर बुक जो लिखते हैं उसमें यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो. पहले पेज पे यही चीज़ मेंशन करनी है. कौन सी चीज़ मेंशन करनी है कि हमें जो चीज़ इस टॉपिक्स में हमें कवर करने हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल्स इज कंसिडर्ड हियर द टॉपिक from 1.1 to 1.6. 1.1 is the introduction part. From the NCERT page number 1 is given. NCERT पेज में कौन सा पेज नंबर हमें कवर करना है 1, और हमारी जो सप्लीमेंट्री बुक है उसमें पहला पेज SB1. तो ये हो गया दोनों का पहला पेज जहाँ पे हम इंट्रोडक्शन ऑफ द रेशनल नंबर्स यानी नंबर सिस्टम्स को हम कंसिडर करेंगे. Second thing, irrational numbers है second points. So that is covered from the NCERT book page number 5. You can also mention in your fair book on the first page. So whenever we have you also revised these things, so that time it will be very helpful for you which page we concern for the each topic. कौन से टॉपिक किस पेज में, कौन सी बुक में किस पेज के ऊपर है, यू कैन ऑल्सो राइट डाउन इट. सो दैट इज ऑल्सो पैरेलल विद द सप्लीमेंट्री बुक 7. तो आप देख सकते हो कि सप्लीमेंट्री बुक जो है उसके जो भी टॉपिक है वो फर्स्ट पेज पे होता है, फिर 7 पेज पे, फिर 9th 10th 13th 16 ऐसे सब पेज डिफरेंट पेजेस के ऊपर हम यहाँ पे कवर करते हैं.
उतने ही पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट है वो सभी पॉइंट्स को हम कवर करेंगे, बिकॉज ऑफ दिस इज अ बेस ऑफ 10th क्लास। तो आपका 10th क्लास का बेस यहाँ से स्टार्ट होता है, तो यू कैन ऑल्सो फॉलो दिस थिंग्स थरोली। Okay, so 1.3, 1.4, 1.5 and 1.6, so each and everything's introduction, then irrational numbers, then real numbers and their decimal expansions, then representing real numbers on the number line, operations on the real numbers, laws of exponent for the real number, ये सभी चीज को हम डिफरेंट एनसीईआरटी पेज नंबर, जब भी आपके पास एनसीईआरटी बुक आ जाए, यदि आपके पास है, यू कैन ऑल्सो मेंशन दिस पेज नंबर। ये सभी पेज नंबर हमारा कंटेंट में इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर? तो ये चीज हुई आपका इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द रेशनल नंबर्स। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। So first part, that is the concept time 1 in our supplementary book. So we have concerned that this concept time 1, this is the concept time 1 that we discussed today as a part of introduction. So in also we discussed into the previous class various types of the numbers. हम ये सब चीज सीख चुके हैं कि how many types of the numbers. So now we should follow these systems into the one page. यदि हमें इंट्रोडक्शन पार्ट में कुछ कंसर्न करना है तो कौन से नंबर में किस पर्टिकुलर टाइप्स के अंदर ये सभी नंबर्स इंक्लूड होते हैं। तो हम अभी तक टाइप्स ऑफ नंबर्स में 4 चीज सीख चुके हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर्स। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखाई देगा कि ये जो चारों चार पोर्शन है, दैट इज अ रिलेशंस बिटवीन डिफरेंट नंबर सिस्टम। तो कितनी नंबर सिस्टम है? तो हम एक याद रख ले कि 4 टोटल नंबर सिस्टम है। नेचुरल नंबर्स होता है, होल नंबर होता है, इंटीजर्स होता है एंड रेशनल नंबर्स होता है। ये चारों चार आप याद रख लो, नेचुरल, होल, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर्स। आप देख सकते हो कि स्टार्ट्स फ्रॉम द नेचुरल नंबर्स, सो इट विल बी डिनोटेड विथ द कैपिटल एन, जिसको हम एन मतलब नेचुरल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर्स में हम स्टार्ट्स करते हैं, स्टार्ट्स फ्रॉम द 1। जो भी काउंटिंग, उसको और भी नंबर सिस्टम बुलाए जाते हैं, उसको काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। नंबर्स जो नंबर्स हम काउंट में यूज करते हैं वो सभी नंबर्स को हम नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। 1 2 3 4 अप टू द इनफाइनाइट, 1 2 3 4। सो दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सो इट इज ओके। नाउ second one is the whole number, w. W means that is the capital W, that is a whole number. Whole numbers should be considered with included zero in the natural number. Natural number में यदि हम zero ऐड कर दे तो वो बन जाता है whole number। समझ में आ रहा है? तो whole number starts from the zero, then we follow all the natural numbers, so that is a particular whole numbers is there. In the integer parts, both things we included. Natural numbers and whole numbers is included, but some negative numbers also be included, like -1, -2, -3, -4 up to infinite. So we can say that in the integer sets, positive integers and negative integers, there are two types. Negative integers, that should be starts from -1, -2, -3, so on. Similar way in the positive 1, 2, 3, 4, 5. So included 0 is not be considered as one kind of the integer, but it's a part of the integers. So all the numbers, natural and whole, should be combined with the negative integers. It becomes a integers number, or it is denoted with the z. वो किससे डिनोट किया जाता है? z से डिनोट किया जाता है। और last one is the rational numbers, that is our introduction part. This is our chapter numbers, that is considered the rational numbers. So rational numbers always be considered with the q. Q means quotient. So we can use here q. q जब हमारे पास होता है, मतलब हमारा रेशनल नंबर से वो दो चीज से रिप्रेजेंट होता है। It is always be in the form of
P बाई Q। अब देख सकते हो कि P बाई Q के फॉर्म में ही हमें ये नंबर्स मिलते हैं। P and Q both are the integers and Q never becomes a zero। Q कभी जीरो नहीं होता और P और Q दोनों कैसे नंबर होने चाहिए? इंटीजर्स। तो यदि P और Q इंटीजर्स नंबर है, इंटीजर्स मतलब हम अभी सीख चुके हैं, इंटीजर मतलब क्या? सभी नेचुरल होल एंड नेगेटिव नंबर्स को मिला दो तब इंटीजर बनता है। तो इंटीजर जब हमारे पास होता है तो इसके रेशियो को P बाई Q, यानी ये रेशियो हुआ ना P और Q, यानी वन P इज इन द पार्ट ऑफ न्यूमरेटर एंड Q इज इन पार्ट ऑफ द डिनोमिनेटर। सो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में जब भी कोई नंबर हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। बट उसमें कंडीशन एक ही है, Q कभी जीरो नहीं होता। बस यही चीज हमें ध्यान में रखनी है, कभी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। यदि डिनोमिनेटर जीरो हो गया यानी Q जीरो हो गया तो वो नंबर रेशनल नंबर नहीं कहलाता। So that is the introduction part of here. So let us move. I hope that all four systems you have to recall. Now let us move on to the next point. So whatever we discuss again, we starts with the different number systems is there, and this is a number systems we have to using like that way. First thing is the integer part। integer are a set of whole numbers along with negative numbers। मैंने अभी बताया आपको ये सब डेफिनेशंस को, फिर से आप उसको स्टडी कीजिए और यू कैन ऑल्सो राइट डाउन दिस थिंग्स इन योर रफ बुक। रफ बुक में जब भी आप साथ में वीडियो लेक्चर्स देखते हैं तभी आप साथ में लिखो, देन इट विल बी वेरी क्लियर कंसेप्ट इन योर माइंड कि इंटीजर किसको बोलते हैं, इसको कौन से लेटर से डिनोट किया जाता है और उसकी परफेक्ट डेफिनेशन क्या है। तो फिर से यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंटीजर्स आर अ सेट ऑफ होल नंबर्स अलोंग विथ नेगेटिव इंटीजर्स that is also be considered here, and it is denoted with the letter Z। So you can also seeing like that how can we represent all the integers over here into the number lines, 0 to all the numbers that should be considered the whole numbers here, and this is the negative numbers। ये सब चीज को मिला दो तो ये इंटीजर हो जाता है। तो that is we discussed earlier in this part। So this is the integer part। now second one is the rational numbers। रेशनल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करें तब हमारे पास नेगेटिव एंड होल नंबर्स का सेट यानी इंटीजर्स का सेट हमारे पास है। अब ये इंटीजर्स का सेट हमारे पास है, देन हाउ कैन वी रिप्रेजेंट इट? फर्स्ट थिंग इज दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द जीरो। आप देख सकते हो कि जीरो से मैंने एक नंबर लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो जीरो के वन के बीच में जो नंबर्स हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? देयर आर सम नंबर्स दैट लाइज बिटवीन इंटीजर्स टू, दिस नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q। आप देख सकते हो कि तीनों नंबर P बाई Q के फॉर्म में है। यस, दे आर कॉल्ड द रेशनल नंबर्स। आप देख सकते हैं 1/4, 2/4 एंड 3/4, दैट इज द form of P by Q। So we can say that it's a one kind of rational numbers। Is it okay? हमें तो यही चीज याद रखनी है कि यदि हम कोई दो नेचुरल नंबर्स के बीच में या दो इंटीजर्स नंबर, आप देख सकते हो ना कि 0 एंड 1 क्या है? इंटीजर नंबर है। तो 0 और 1 के बीच में जो नंबर्स हम P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं तभी वो नंबर को हम रेशनल नंबर बोलते हैं। इज इट क्लियर? नाउ first things, if we have to use this representation of the rational numbers, then we can say that what is the actual definition of it। So again you can also write down this definition in your book। rational numbers are numbers that can be written in the form of P by Q where P and Q are the integers and Q is not equal to 0। if Q is equal to 0 the fractions become अनडिफाइंड। जब ये जीरो हो जाता है, यदि Q जीरो हो जाता है तो अब वो अनडिफाइंड रहता है। अब देख सकते हो रेशनल नंबर्स आर डिनोटेड बाय द लेटर Q। Q से डिनोट किया जाता है। मैं कभी भी ये MCQs में पूछ सकता हूँ
कि रेशनल नंबर्स को कौन से लेटर से डिनोट किया जाता है, नेचुरल नंबर को, होल नंबर को और इंटीजर्स को. ओके, so here given the examples here that 3 by 4 is a rational number. So 3 is an integer, 4 is also an integer, but 4 is never equal to 0. So the term ratio यानी रेशनल कम्स फ्रॉम द वर्ड रेशियो. कहाँ से आ रहा है, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि पी बाई क्यू में जब रेशनल नंबर हम बोलते हैं तो वो रेशनल वर्ड कहाँ से आ रहा है, रेशियो के ऊपर से आ रहा है. सो दैट इज द हिस्ट्री ऑफ द रेशनल नंबर. Let's move on to the next point. So by definition, can we consider the number given below is a rational number or why? अब देख सकते हो कि यहाँ पे जो चीज़ आपको मेंशन की है 2/9 -5 एंड 0, इसमें कौन से नंबर रेशनल नंबर है? तो ऑब्वियसली -5 एंड 0 इज अ रेशनल नंबर और 2/9 इज अ रेशनल नंबर. जस्ट वी हैव टू चेक इट आउट. First things, 2/9 is in the form of p by q. Yes, so that is a one kind of the rational number. -5 upon 1 भी हम लिख सकते. So both of the integers are there, so denominator is not equal to 0, and 0 divided by 1 are both integer, the denominator is not equal to 0. तो ये तीनों चीज है, ये तीनों तीन रेशनल नंबर है. देख सकते हो ना कि पी बाई क्यू के फॉर्म में जो भी नंबर हम लिख सके, बस कंडीशन हमें यही याद रखनी है कि उसके डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए. अब देख सकते हो कि पहला 2/9 है तो वो तो पी बाई क्यू के फॉर्म में है ही. यदि -5 के नीचे 1 लिख दो तो भी यहाँ डिनोमिनेटर 0 नहीं है, और 0 के डिनोमिनेटर में यदि 1 लिख दो तो भी यहाँ पे q है, दैट इज नॉट इक्वल टू 0. तो ये तीनों चीज है, that all three numbers it should be considered as a rational numbers. So that is the explanations over here. Now another one, 10, 20, 25, 50 and 1 and 2, 1 upon 2, that is represent three different rational numbers. Do the numbers given below that is represent three different rational numbers? इसमें से आप कुछ क्या कर सकते हैं? टू अंडरस्टैंड वेदर द गिवन नंबर रिप्रेजेंट थ्री डिफरेंट रेशनल नंबर, लेट अस रिड्यूस ईच ऑफ देम इनटू देयर लोएस्ट फॉर्म. आप सीख चुके हो 8th स्टैंडर्ड में कि उसके लोएस्ट फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करें. सो दैट इज वी रिक्वायर्ड हियर टू अंडरस्टैंड वेदर द गिवन नंबर्स इनटू द इट्स लोएस्ट फॉर्म. सो 10, 20 को हम उसके लोएस्ट फॉर्म में यानी 10 से डिवाइड कर देते हैं दोनों नंबर्स को, लाइक दैट वे. 10 और 20 को 10 से, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को 10 से, यानी हमारे पास आ गया 1/2. फिर 25, 50 को 25, 25 से डिवाइड करते हैं तो भी हमारा लोएस्ट फॉर्म आ रहा है 1/2. सो 1/2 इज इन द इट्स लोएस्ट फॉर्म. So on reducing the given number to their lowest form, we can see that each of them is equivalent to 1/2. तो लास्ट वन जो है उसके साथ ये 1/2 है वो इक्विवेलेंट हो जाता है. देन दे रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर विच इज 1/2. तो ये हुआ कैसे कोई बड़े रेशनल नंबर को लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना. इज इट ओके? ये चीज़ हम 8th क्लास में भी सीख चुके हो, सो दैट इज वेरी इजी फॉर यू. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स? ये सब चीज़ आपका रिकॉलिंग ही है. इक्विवेलेंट रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? 10/20, 25/50 एंड 1/2 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स. इफ वी रिप्रेजेंट दिस नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, ईच ऑफ देम विल टेक द सेम पोजिशन. इक्विवेलेंट रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? जब हम उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं तब उसकी पोजीशन एक जैसी हो. देयरफॉर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर रिप्रेजेंट द सेम नंबर ऑन द नंबर लाइन. तभी हम नंबर लाइन पे सेम नंबर के ऊपर उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो दैट इज अ इक्विवेलेंट. नाउ द कंक्लूजन इज दैट all these things we covered today. Rational numbers are numbers that can be written in the form of p by q,
where p and q are the integers and q is not equal to 0। ये डेफिनेशन आपके माइंड में क्लिक हो जानी चाहिए, उसको ऐसे ही याद रखना नहीं है, रटना नहीं है, बट आप वही चीज़ को एक दो बार लिख के या माइंड में सेट करके आप याद रख सकते हो। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स रिप्रेजेंट द सेम नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो दो चीज़ हम कंक्लूजन में आपको दिखा रहे हैं। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। So this is a independent practice question 1.1 to 1.3 that is given in your supplementary book. So in today's homework you have to cover this all the practice question from 1.1 to 1.3. I also mentioned here in this video lecture, but you have to cover your own. यहाँ पे आंसर तो दिया गया है, but you have to practice at your home. कौन से प्रैक्टिस आज करनी है होमवर्क में? प्रैक्टिस क्वेश्चन 1.1 टू 1.3। सो लेट अस मूव ऑन इट। फर्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन 1.1 को हम कंसिडर करें। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट्स। आपको ये बताना है कि फॉल्स है या ट्रू है। पहला क्वेश्चन है ऑल द नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। आप देख सकते हो, आप सोचो, इमेजिनेशन करो कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स और नॉट। तो आप देख सकते हो कि ऑल नेचुरल नंबर्स, अब बात कर लो 0 1 2, आपके माइंड में आ जाना चाहिए कौन सा रेशनल नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर है। तो सभी रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर आप लिखो, 0 के नीचे 1 लिखो, 1 के नीचे 1 लिखो, 2 के नीचे 1 लिखो, 3 के नीचे 1 लिखो, तो ये सब नेचुरल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में आ जाता है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये हुआ ना कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर हो सकता है, दैट्स व्हाई इट्स ट्रू। क्लियर? ऐसे ही आपको 1.1 की ए बी सी तीन चीज आपको कवर करनी है और विथ द रीजन आपको लिखना है। करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट, जो भी फॉल्स है उसका स्टेटमेंट लिखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दिखा रहे सेकंड वन बी, ऑल रेशनल नंबर्स आर इंटीजर्स, वो फॉल्स है। क्यों? अब देख सकते हो कि ऑल रेशनल नंबर्स इंटीजर्स नहीं हो सकता। All rational numbers are not integers. There are some numbers which are in the form of p by q, where q is not equal to 0, that do not belong to the set of integers. For example, 1 by 2 and 3 by 4, such numbers are the rational numbers. 1 by 2 and 3 by 4 है, वो rational number है। Okay, so that is integer, but all rational numbers not considered as an integer, वो integer नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ 3 के नीचे 3 है, रेशनल नंबर्स हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो सपोज मैंने ऐसा लिखा 0 बाई 2 या 3 बाई 3 या 2 बाई 2। सो 2 बाई 2 करने से रेशनल नंबर्स के फॉर्म में है, बट 2 बाई 2 को रिप्रेजेंट कर दो तो वो एक इंटीजर बन जाता है 1। बट 1 बाई 2 एंड 3 बाई 4 सच नंबर्स आर द रेशनल नंबर। ये सभी रेशनल नंबर हो सकते, तो हम उसके रीजन के साथ ए इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमें आज जो करना है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन 1.1 ए बी सी आपको यहाँ पे इंडिकेट्स किया है। वैसे ही 1.2 प्रैक्टिस क्वेश्चन 1.2 इज -50 is a rational number, give reason for your answer. Yes, -50 is a rational number. इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। आप देख सकते हो कि -50 के नीचे 1 लिख सकते हैं एंड द डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है, तो -50 इज ए रेशनल नंबर। ऐसे ही आपको रीजन जो भी ब्लू लाइंस में लिखा है इतना ही आपका आंसर होना चाहिए। 1.3 का ए बी एंड सी को हम कवर कर रहे हैं, उसमें ए को फर्स्ट हम कवर कर रहे हैं विदाउट प्लॉटिंग ऑन द नंबर लाइन। State whether the following numbers represent the same rational number, give reason for your answer. हमें क्या करना है कि नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किए बगैर, मतलब उसके ऊपर हम प्लॉट नहीं करेंगे, फिर भी हमें बताना है कि इट्स ए सेम रेशनल नंबर्स और नॉट। यदि नहीं है तो आपको रीजन देना। 2665 को 13 से डिवाइड करो, मैंने अभी इक्विवेलेंट में आपको बताया, वैसे ही सेम टाइप का क्वेश्चन। तो 2 बाई 5 आया, फिर 13 बाई 35 इज इट्स लोएस्ट फॉर्म,
and 2 by 5 it also in the lowest form. So 26, 65 and 2 by 5 represent the same rational number, क्योंकि उस दोनों का आंसर 2 by 5 आता है, तो दोनों सेम रेशनल नंबर है. बट 13 डिवाइड बाय 35 डज नॉट रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर इन द लोएस्ट फॉर्म. तो हमें इसका आंसर क्या देना चाहिए? नहीं है ऐसा. वैसे ही सेकंड वन बी का सिमिलर वे, जो भी नंबर आपको रिप्रेजेंट करते हैं उसका लोएस्ट फॉर्म में आपको कन्वर्ट कर देना है, और यदि लोएस्ट फॉर्म इक्वल आता है तो तब हम ऐसा कह सकते हैं कि दैट इज अ सेम. ओके, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन 1.3 का ए एंड बी, दैट इज ऑल्सो बी डन टुडे इन योर होमवर्क. कुछ भी प्रॉब्लम हो, यू कैन ऑल्सो शोइंग दिस प्रैक्टिस एक्सरसाइज फ्रॉम दिस. ओके, यही वीडियो का यूज करके आप ये प्रैक्टिस करते रहे. ऐसे जितने सारे आपको नेट्स में, इंटरनेट में, कहीं भी ऐसे टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आपको मिले, वो क्वेश्चंस आप घर बैठे उसको सॉल्व करेंगे. मतलब आपका एक असाइनमेंट भी हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी. और आज के होमवर्क में तो सिर्फ आपको 3-4 क्वेश्चन ही करने हैं, बट 4 क्वेश्चंस के पहले जो भी चीज़ आज मैंने वीडियो लेक्चर्स में बताई वो सभी रिकॉल करनी है. इज इट ओके? आई होप सो दैट एवरीवन गेट थ्रू ऑफ द डे 1 लेक्चर्स ऑफ यूनिट नंबर 1. मैंने पूरा प्लान बता दिया है कि कैसे हमें आगे बढ़ना है, कैसे हमें करना है. तो आज जो भी चीज़ सीखे वो स्टार्ट्स फ्रॉम द नंबर सिस्टम टाइप्स से लेके हमने स्टार्ट किया था, और हमने वो रेशनल नंबर्स और इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स के बीच में जो चीज़ हमारे क्वेश्चंस में आती रहती है उस टाइप की प्रैक्टिस क्वेश्चन 1.1, 1.2 एंड 1.3 आप अपने सप्लीमेंट्री बुक में से भी कर सकते हैं, और वही चीज़ आज मुझे होमवर्क में सेंड करनी है. ओके, तो today's homework is practice question 1.1, 1.2 and 1.3 A and B. Okay, so I hope so that everyone get it more with through these lectures, and it is very useful to you. So you have also remind for the practicing for this video, and whenever you required any doubts, you just ask me. Thank you very much for being with us. We will meet very soon into the next lecture. Thank you very much.